Guys, here we have a question that the transfer character curve of a transistor having input and output resistance 10 ohm and 10k ohm respectively is shown in the figure. The voltage and power gain are respectively. Now we have to find the voltage gain and power gain, right? For the first of all, by looking at the graph, we come to know that the given transistor is in common emitter configuration because IC is given in milliampere whereas IB is given in microampere, right? That means the output will be at collector whereas input will be at base, right? So now we have the voltage gain, that is AV, which will be equal to delta V output upon delta V input, right? We can write it as delta I output upon delta I input multiply by R output upon R resistance input, right? Which will be further equal to delta IE upon delta IB, right? Multiply by RO upon RI. Now we have given the values, so after putting the values we will be having 5 into 10 to power cube inverse upon 100 ohm multiply by 10 to power minus 16, right? Multiply by 100 into 10 to power 3 upon 100. So after solving this we will be getting 0.05 into 10 to power 6, right? Whereas our average or voltage gain, will be 5 into 10 to power 4. Now getting our focus towards power gain, again it is denoted by AP. Power gain will be change in voltage output, change in voltage input, right? Further it will be multiplied by the delta current output, delta change in current in input, and it will be equal to delta I E upon delta I B whole square multiply by R naught, R output upon R input. Again by putting the values we will be having 5 into 10 to power minus 3 divided by 100 into 10 to power minus 16 multiply by 100 into 10 cube upon 100. After solving this we will be getting our value equal to 50 square into 10 to power 3. With further simplification it will become 2.5 into 10 to power 6, right? So we have the power gain and we have the voltage gain. So now the option B is matching with our answer, so this is the correct option. हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जीनर डायोड का क्वेश्चन है। ओके, ये जीनर रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे ये काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है कि हमें आई
आई जेड जो यहाँ पे जाएगा, आई जेड जो होगा करंट जीनर के थ्रू जो करंट पास करेगा, जीनर डायोड के थ्रू जो करंट होगा उस उसकी वैल्यू पूछ रहा है, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है जब वीबी की वैल्यू 8 वोल्ट से 16 वोल्ट हो तो। ओके, तो हम फर्स्ट केस में अगर इसका फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, ये हो गया हमारा वीबी। ओके, और इसकी वैल्यू जो लेते हैं फर्स्ट केस में 8 वोल्ट लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है, दिया हुआ है फिगर में, तो आर आई वो उसकी वैल्यू 1 किलो ओम दे रखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक जीनर डायोड ऐड किया हुआ है, तो ये हमने एक जीनर डायोड ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आर एल। ओके, जो करंट यहाँ पास करेगा वो आई 1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और वी जेड हमें दे रखा है 6 वोल्ट। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो जीनर डायोड है, ये जो जीनर डायोड है वो ऑन है कि ऑफ है। ओके, चेक करते हैं कंडीशन ऑफ जेनर डायोड। ओके, तो कैसे चेक करेंगे, इस पॉइंट पे हम वी टी एच निकालते हैं, वी थेवेनिन्स थ्योरम से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा वी टी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आर एल इंटू वी बी डिवाइडेड बाई आर आई प्लस आर एल। ओके, अब आर एल की वैल्यू क्या है, आर एल दे रखा है हमको 4 किलो ओम। ओके, 4 किलो ओम इंटू ये क्या देखा दिया है हमको 8 वोल्ट दिया है, 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये है हमारा 4। ओके, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6.4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, 6.4 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो होगा 6.4, जो कि इफ वी टी एच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी जेड, then Zener diode will be on. Okay, then Zener diode will be in on condition, in on कंडीशन। ओके, तो अब ऑन है, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही तो इस लोड रेजिस्टेंस से भी होगा। ओके, तो इससे जो करंट पास कर रहा है लोड आरएल से, उसको बोलते हैं आईएल। ओके, तो आईएल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आईएल इज इक्वल टू वी जेड डिवाइडेड बाई आरएल। ओके, तो वी जेड कितना है, वी जेड हमें पता है, वी जेड 6 वोल्ट है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जीनर डायोड जो है बैकग्राउंड वोल्टेज में 6 वोल्ट पे काम कर रहा है। ओके, डिवाइडेड बाय ये है 4, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 मिली एम्पियर। ओके, अब इसके बाद हमें आई आर निकालना है। ओके, आई आर निकालना है। आई आर इस सर्किट में क्या होगा, तो देखिए केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा वी बी माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर आई, तो यहाँ से वी बी कितना है 8 वोल्ट माइनस वी जेड 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर आई 1, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। ओके, तो अब यहाँ पे इस नोड पे अगर हम इस नोड पे केसीएल लगाएं तो देखो ये हो गया आई आर, ये हो गया आई एल, और ये हो गया आई 1, तो क्या लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू आई 1
प्लस आई एल। ओके, तो यहाँ से I1 क्या होगा, I1 होगा IR माइनस IL, और इसकी वैल्यू क्या होगी, IR हमने निकाल रखा है 2 मिली एम्पियर माइनस IL क्या होगा, IL 1.5 मिली एम्पियर, यहाँ पे मिली एम्पियर है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। ओके, अब सेकेंड कंडीशन में जब VV की वैल्यू 8 वोल्टेज से 16 वोल्टेज हो जा रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में देखिए सर्किट जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये हो जाएगा हमारा पे VB कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये RI तो 1 किलो ओम ही रहेगा। ओके, यहाँ पे जीनर डायोड यूज करेंगे और यहाँ पे सर्किट में लोड रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे RL। ये है 4 किलो ओम, ये है VZ इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ पे VTH कंडीशन चेक करते हैं कि जीनर डायोड ऑन है या ऑफ है, तो VTH इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे VB इंटू RL डिवाइडेड बाई RI प्लस RL। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ से 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारा 12.8 वोल्ट। ओके, तो VTH यहाँ पे भी VTH इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू VZ है। ओके, तो जीनर डायोड ऑन कंडीशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे VL जो होगा, VL होगा वो 6 वोल्ट होगा, और यहाँ से IL निकाल सकते हैं इजीली। IL क्या हो जाएगा, VL डिवाइडेड बाई RL, और यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 मिली एम्पियर। ओके, और इसके बाद हम IR निकालेंगे। IR इज इक्वल टू क्या होगा, इस लूप में अगर देखें तो यहाँ से KVL लगाएंगे तो IR इज इक्वल टू VB माइनस VZ बाई RI हो जाएगा। यहाँ पे VB कितना है 16 वोल्ट माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, ये हो जाएगा हमारा 10 मिली एम्पियर। और यहाँ से अगर इस पॉइंट पे KCL लगाएं तो IR और ये हो जाएगा IL और ये हो जाएगा I2। ओके, तो यहाँ से अगर इसको लिखा जाए तो IR इज इक्वल टू IL प्लस I2। ओके, तो यहाँ से I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू IR माइनस IL। ओके, अब यहाँ पे IR क्या है, IR है 10 मिली एम्पियर माइनस IL क्या है 1.5 मिली एम्पियर। ओके, ये हो जाएगा 8.5 मिली एम्पियर। ओके, तो मिनिमम टू मैक्सिमम जो रेशियो होगा इसका वो हो जाएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम जो रेशियो पूछा है वो हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर टू 8.5 मिली एम्पियर। ओके, जो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 2 में यही सेम चीज़ है 0.5 मिली एम्पियर टू 8.5 मिली एम्पियर। ओके, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन।